Hi everyone. So welcome to our third part of the video of question bank given by Master Board. हमने पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कम्प्लीटली सॉल्व किया था. पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था. एंड दिस इज आवर थर्ड वीडियो वेयर अभी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 4 entirely which is comprehension. So starting with the first comprehension students, हमें यहाँ पे दिया हुआ है Listen the text and respond to your questions you want. So basically वो उन्होंने कहा गया वो उन्होंने कहा हमें that we have to read the entire text. We have to read the entire text and answer the given question. So let's read the text first. Sylvie Dupont était serveuse du café. So Sylvie Dupont एक character का नाम है and she was a waiter in the cafe. मैम मतलब even when she was very occupied, she was observing the people. Even when she was occupied, she used to keep stalking people. सबको देखने की आदत थी उसको. वो observe वगैरह करती थी. Sherlock Holmes की बहन थी. One day, un jour quand elle servait, one day when she was serving to two clients, elle a remarqué, she observed, उसने remark किया, उसने क्या remark किया students? That one of this sir was doing some gesture to someone. एक चीज जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसे gesture मतलब उंगली कर रहा था to someone in a car parked opposite to the cafe. तो बता रहा था देखो हम कैफे के ऑपोजिट में एक कार पार्क किया उसकी तरफ इशारा कर रहा था. Afterwards, after some minutes, This two men went out from the coffee. तो वो लोग कॉफी पीकर फिर बाहर चले गए and entered in the shop of the jewelry next to the coffee cafe. So वो लोग दो लोग पहले कैफे आए थे फिर उसके बाद उन्होंने उंगली की उसके बाद वो लोग वहां से निकलकर बाजू वाले शॉप में चले गए जहां पर ज्वेलरी शॉप थी. Some moment later, Il or saw Sorti. They came out from there. So they came out from there rapidly. मतलब भाग के बाहर आए. And they were carrying some box in their hand. उनके हाथ में कोई बॉक्स था. Sylvie a view. Sylvie saw. तो वो जो वेटर थी उसने देख लिया स्टूडेंट्स. Jewelries and watches in the box. Jewelries वगैरह थी, वॉच थी बॉक्स के अंदर. And this was then the thieves. So डोंग मतलब सो होता है. So स्टूडेंट्स उसने पता चल गया ये लोग चोर है. एला टेलीफोन है. She called. पास से कंपोज है. She called quickly the police agent who stopped the criminals नॉट फार फ्रॉम द सिटी. और सिल्वी के इतने स्टॉकिंग पावर की वजह से स्टूडेंट्स पुलिस उन दो चोर को पकड़ पाई. सो दैट इज अ नाइस स्टोरी. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चन बाय द कंप्लीट फ्रेज. कंप्लीट फ्रेज लिखना है. सिल्वी कैस कहला remarque un jour. तो सिल्वी what did she remark one day. तो सिल्वी ने क्या रिमार्क किया. So coming on page number 12 students आप वहां पे देख सकते हो. सिल्वी आ remarque. सिल्वी ने क्या ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स. remarque क one of they messier one of the sir मैं seen this नहीं लिख रहा हूं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं. messier one of the sirs MESSIEURS one of the sirs faisait FAISAID faisait des gestes à quelqu'un dans une voiture stationnée parked en face du café. So Sylvie observed that one of the sirs was doing some gestures to someone in a car parked in front of the cafe. Second question which says où était la voiture. Where was the car students. कार कहाँ पर थी. So I guess the car was opposite to the cafe. So we can write la voiture. क्वेश्चन में कौन सा टेंस दिया है लेट मी चेक. क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें पास एम पारफे दिया तो हम सेम लिखेंगे एम पारफे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. द कार was en face du café opposite to the cafe. Superb. Third one. What is the third one now? Qu'est-ce que le voleur portait à la main. What the thieves were wearing or carrying in the hand when they लेफ्ट फ्रॉम द शॉप. तो चलो स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन से पहले कॉपी करना है आप लोग को. मैं नहीं लिख रहा हूं आपको कॉपी करना है. लेवोलर आप लोग अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन के अंदर. लेवोलर से स्टार्ट करेंगे. लेवोलर
the thieves were carrying in the hand when they came out from the shop. ओके तो हम क्या है, द थीव्स वर कैरिंग, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ले वोलर porte, porte means carry, were carrying, they buat à la main. So the thieves were carrying box in the hand. बाकी पूरा क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूं. Comme ils sont sortis du magasin. चलो मैंने पूरा ही बोर्ड पे लिख दिया स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी दिस नाइसली. फोर्थ वन, Sylvie pourquoi a-t-elle téléphoné aux agents de police? Why Sylvie called the police agent? तो स्टूडेंट्स सिल्वी ने क्यों उनको कॉल किया था? बिकॉज दे वर द थीव्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन से कॉपी करेंगे. सिल्वी, क्वेश्चन में उल्टा है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया, उसको सीधा करेंगे. सिल्वी आ टेलीफोने ओ agent de police parce que les deux messieurs मतलब sir, the two sirs, MESSIEURS étaient were voleurs. हम मैं थोड़ा बहुत खुद से फ्रेम कर रहा हूं. तो Sylvie called the police agent because the two sirs were thief. ओके, पूरा मैंने étaient ले वोलर, एते आएगा, फिर यहाँ पे ले वोलर आएगा, वर द थीव्स, VOLEURS. और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर ए वाला पार्ट कंप्लीट हुआ. मूविंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ बी सेज सिल्वी ऑब्जर्व toujours les clients de son café. True or false है सिल्वी? So Sylvie always observes the client of his cafe. Answer true है स्टूडेंट्स, वो हमेशा सबको ही ऑब्जर्व करती थी. सेकंड वन, Le magasin de bijoux, the shop of jewelry was far from the cafe. False, सामने ही था तो far नहीं था स्टूडेंट्स. थर्ड, the agent the police agents n'ont pas trouvé, did not find the thief. False, पुलिस एजेंट ने लास्ट में उन्होंने स्टॉप कर लिया था तो पुलिस एजेंट को मिल गया था थीफ. तो थर्ड वाली भी हमारा फॉल्स है. सी, गिव द इंफिनिटिव ऑफ वोये का इंफिनिटिव. तुम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में वोये लिखना है स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे वुआर वर्ब लिखेंगे. वुआर मतलब ये क्या हो गया, हमने इंफिनिटिव दे दिया है. डी, lentement. स्टूडेंट्स व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ lentement? नॉट इक्वल टू साइन करेंगे. lentement मतलब स्लोली होता है, तो उसका ऑपोजिट है विथ मतलब फास्ट या फास्टली. एक एडवर्ब का ऑपोजिट एडवर्ब भी लिखना है हमें. ई पार्ट है स्टूडेंट्स, ई पार्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स है. कंप्लीट विद द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. j'ai attendu पास्ट से कंपोज है. I waited for my friend some dash, तो some minutes आएगा, MINUTES, some minutes. ओके, सो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड टू कॉम्प्रिहेंशन 2 नाउ. लेट्स स्टार्ट, वी विल रीड इट. अनिल ए आ ब्रेस्ट डेप्यू 3 mois. ब्रेस्ट एक सिटी का नाम है. सो अनिल इज एट ब्रेस्ट सिंस 3 months. इन ई हैबिट, ही लिव्स देयर इन अ फ्रेंच फैमिली. सो अनिल साउंड तो एक इंडियन कर रहा है, बट वो वहां पे फ्रेंच फैमिली के साथ रहता है. एंड हिज आंटी मदाम जोशी, तो अनिल की आंटी मिसेस जोशी लिव्स, अनिल की आंटी मिसेस जोशी लिव्स एट प्रेजेंट इन इंग्लैंड. तो वो कहाँ रहती है स्टूडेंट्स? वो इंग्लैंड रहती है. अंग्लिटेर मींस इंग्लैंड होता है. ओके, एल वा पास है, शी इज गोइंग टू पास बाय पेरिस ऑन सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे. प्रोसेशन मतलब नेक्स्ट होता है. तो स्टूडेंट्स कौन, अनिल की आंटी रहती कहां पर है स्टूडेंट्स? ऐसे तो अंग्लिटेर रहती है. ओके, तो उसकी आंटी पेरिस से गुजरने वाली थी. कभी गुजरने वाली थी? सैटरडे को. सो शी कॉल्ड अनिल, तो उसने अनिल को बोला और बोला दैट आई एम गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन ऑफ नॉर्थ ऑफ पेरिस. तो पेरिस की कोई स्टेशन पे अराइव होने वाली थी. किसने बताया? अनिल की आंटी ने अनिल को बताया. एट 14 o'clock, 14 o'clock मतलब दोपहर के 2 बजे. एंड आई एम गोइंग टू टेक अ प्लेन फॉर मुंबई. और उसके बाद अनिल की आंटी पहले इंग्लैंड से लेकर पेरिस और पेरिस से मुंबई जाने वाली है. और वो प्लेन कहां से पकड़ेगी? फॉर मुंबई एट द एयरपोर्ट ऑफ चार्ल्स द गॉल. चार्ल्स द गॉल एक एयरपोर्ट है जो पेरिस में है. 11 o'clock मतलब 2 बजे वो पेरिस आ जाएगी और शाम रात को 11 बजे की उसकी ट्रेन है. इसलिए उसने अनिल को बुला दिया मिलने के लिए. सो कॉम अनिल वर अनकॉन्शियस एट टाउन. सो एज अनिल आल्सो वांटेड टू मीट हिज आंटी, ही इज गोइंग टू टेक द ट्रेन ब्रेस्ट. सो अनिल कहां जाएगा स्टूडेंट्स? वो ब्रेस्ट से पेरिस खुद भी जाएगा
उसकी आंटी को मिलने के लिए। pour la voir, क्यों जा रहा है? in order to see her, उनको देखने जा रहा है, उनको मिलने जा रहा है। and to offer a gift from France, so basically अनिल अपनी आंटी को गिफ्ट भी देने वाला है। Madame Joshi likes the perfumes and Anil offers a French perfume, very famous perfume. So उसकी आंटी को क्या पसंद है स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा पसंद है परफ्यूम, एंड इसीलिए अनिल क्या करेगा? अपनी आंटी को परफ्यूम गिफ्ट करने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 होगा, और 2 का ए लिख रहा हूं। यहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन व्हिच सेज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी आंसर क्वेश्चन। अनिल उ हाबितिल, वेयर अनिल लिव्स, अनिल कहां पर रहता है स्टूडेंट्स? सो आई गेस अनिल स्टूडेंट्स ब्रेस्ट रहता है, तो हमने सबसे पहले दिया था अनिल। ओके, आई एम राइट ओवर हियर। अनिल हाबिट आ ब्रेस्ट, एक सिटी का नाम है। डॉन, और किसके साथ रहता है स्टूडेंट्स? डॉन्स यून फैमिली फ्रांसेस, वो एक फ्रेंच फैमिली के साथ रहता है वहां पर। उसका नाम इंडियन है, तो हो सकता है कि वो इंडियन हो सकता है, पर अनिल यहाँ पर अपनी फ्रेंच फैमिली के साथ रह रहा है। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड वन। Madame Joshi, comment va-t-elle voyager jusqu'à Paris? Madame Joshi, how is she going to travel to Paris? Madame Joshi कहाँ पर रहती है स्टूडेंट्स? इंग्लैंड रहती है। इंग्लैंड से वो पेरिस आने वाली थी, और वो पेरिस स्टेशन आने वाली है। तो स्टेशन आने में तो ऑब्वियसली वो ट्रेन से आने वाली है। सो नेक्स्ट राइट, Madame Joshi va voyager, I will write over here, Madame Joshi va voyager jusqu'à Paris, jusqu'à Paris par le train। तो मैंने लिख दिया बाय ट्रेन। मुझे कैसे पता चल? ट्रेन बिलो स्टूडेंट्स वहां पे दिया हुआ है स्टेशन, ऑब्वियसली स्टेशन आ रही है, मतलब वो ट्रेन से आ रही होगी, वेरी ऑब्वियस। थर्ड, आ केलर वाटेल प्लॉन्डर, एट व्हाट टाइम इज शी गोइंग टू टेक द प्लेन फॉर मुंबई? तो स्टूडेंट्स वो मुंबई के लिए प्लेन कितने बजे लेने वाली है? क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर क्रॉस किया है, उल्टा है फिर क्वेश्चन मार्क। हम भी क्या करेंगे? फ्यूचर क्रॉस यूज करेंगे। मदाम जोशी va prendre, future clause, l'avion, Madame Joshi is going to take the plane, avion आएगा, avion pour Mumbai at a, so Madame Joshi va prendre l'avion pour Mumbai à 23h। 23h हम भी सेम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन है। 23h मतलब रात के 11 बजे। 23h, okay। And finally, fourth one, I'm going to write over here fourth one, which says, Pourquoi Anil va-t-il prendre le train Brest-Paris? So why Anil is going to take the train? So I guess Anil, क्यों ट्रेन ले रहा है स्टूडेंट्स? अगेन फ्यूचर क्लॉज यूज किया, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अनिल va prendre le train, Anil is going to take the train Brest-Paris, तो वो ब्रेस्ट सिटी से पेरिस जा रहा है स्टूडेंट्स। pour, तो हमें दिया हुआ यहाँ पे pour voir sa tante in order to see her auntie and in order to meet her auntie। तो ये जो भी वर्ड्स हमें अंदर दिए थे मैंने सेम वर्ड यूज किए यहाँ पर स्टूडेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट नाउ। बी का फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, मदाम जोशी एक्चुअली लिव्स इन पेरिस। सो यस, ओ मदाम जोशी तो इंग्लैंड रहती थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। मदाम जोशी तो यहाँ पे नहीं रहती। She is going to pass by Paris on Saturday. Yes, लिखा हुआ है वो सैटरडे को पेरिस आने वाली थी दोपहर को 2 बजे। तो इट्स अ व्रे स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे व्रे लिख रहा हूँ, व्रे मतलब ट्रू होता है। एंड लास्ट, नेक्स्ट आफ्टर दैट थर्ड वन, अनिल va offer a packet of fromage. अनिल is going to offer a packet of cheese. कुछ भी चीज नहीं था, तो परफ्यूम था। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कभी नहीं बोला अनिल ने कि मैं अपनी आंटी को चीज दूंगा। सी, फाइंड इन द टेक्स्ट इन एडवर्ब। तो स्टूडेंट वहां पे एडवर्ब में दिया हुआ एक्चुअलमो, आप देख सकते हो एक्चुअलमो लास्ट में MENT, मतलब वो एक एडवर्ब है। एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली बोल सकते हैं, प्रेजेंटली। सी का फर्स्ट था, अब सी का सेकंड स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? द ऑपोजिट ऑफ पार्थिर। पार्थिर का ऑपोजिट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू साइन करेंगे, आरिवेर। डी, My parents give me a dash for my birthday. My parents give me a cadeau. तो हमें fill in the blanks करना है स्टूडेंट्स। My parents give me a dash on my birthday, so obviously it has to be gift। और यहाँ पे हमारा पूरा comprehension होता हुआ complete। And now moving forward to the third comprehension students, let's start third comprehension से start करेंगे हम लोग।
quand vous terminez votre travail. So when you finish your work, my students, न oublie pas mes conseils. Do not forget my advices. So ये कौन बोल रहा है? एक टीचर बोल रही है. एक टीचर बोल रही है अपने बच्चों को that when you finish your work, do not forget my advice. Rangez vos livres et vos cahiers. Very important. Arrange your books and notebooks. तो स्टूडेंट्स आपका भी जब ऑनलाइन लेक्चर खत्म हो जाता है ना, तो अपनी बुक्स और नोटबुक्स को अरेंज कीजिए. आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं आप कुछ अरेंज नहीं करते तो. सेज मदाम मेहता. तो ये कौन बोल रही है? मदाम मेहता वो टीचर का नाम है. Pendant le cours en ligne during the online lecture. तो ये कब बोला उसने? During the online lecture बोला था. मैं ऑफिस बट माई सन. माई सन मतलब किसका सन? ये मदाम मेहता है ना, उसका एक बच्चा है, सन है, जिसका नाम अनमोल है. अनमोल न पॉन्स पास अला. बट वो अनमोल कभी नहीं सोचता. डज नॉट थिंक अबाउट इट. एंड हिज बुक्स आर ऑलवेज एवरीवेयर इन द रूम. और उसकी बुक्स हमेशा यहाँ वहां बिखरी पड़ी होती है, पसारा बहुत ज्यादा होता है. Son père et moi, his father and me, nous avons puni plusieurs fois. We have punished several times for the small carelessness. तो जब कभी ये छोटी मोटी carelessness गिरी करता है, हमने अनमोल को बहुत ज्यादा पनिश किया हुआ है. So students, ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन में कोई भी अगर अननोन वर्ड आएगा, बाहर से वोकैबुलरी आएंगे, वो लोग आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन देंगे. डोंट वरी. तो आपको सिर्फ आपका 0 to 4 चैप्टर का वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. Okay. Nous lui répétons toute la journée. We repeat them throughout. We repeat to him throughout the day. Ne laisse pas à ton dictionnaire. Do not leave there your dictionary. तो इसके mom dad हमेशा उसको चिल्ला रहे. Do not leave your dictionary over there. Pick up your pen and pencil. But अनमोल किया 8 ans. So अनमोल कितने साल का स्टूडेंट्स? अनमोल is of 8 years old. Ne nous écoute pas. Does not listen to us. उनका 8 साल का बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है. वेरी बैड. अलर्ट यूकुर ऑन द टाइम ऑफ लेक्चर इन द ट्रूपास cahier and he does not find his notebooks and some other books. और जब भी उसका लेक्चर होता है उसको अपनी कभी बुक्स टाइम पे नहीं मिलती. il cherche toujours en vain. उसकी सर्च हमेशा इन वे मतलब पूरी वेस्ट चली जाती है. and is never on time for the online lecture. इमेजिन करो अनमोल ऑनलाइन लेक्चर पे भी टाइम पे नहीं आ पा रहा है स्टूडेंट्स. न सोइए पा अनमोल. और आप डू नॉट बी लाइक अनमोल. देखो ये इंपरेटिव कमांड दिया हुआ है, नेगेटिव कमांड. डू नॉट बी लाइक अनमोल. एंड लास्ट लाइन बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल है, ध्यान से सुनना. नोत्र वी एत्रो कुर्त. आवर लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट और टू लूज लाइक दिस आवर टाइम. और हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है स्टूडेंट्स, ऐसे अनमोल ऐसे बहुत ही कीमती वक्त को गंवाने के लिए. वाह. So let's start now students. हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे थर्ड ए से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज आपका ऐसे का अनमोल न पॉन्स पास. सो स्टूडेंट्स अनमोल किस बारे में नहीं सोचता? तो अनमोल ने मम्मी ने जो एडवाइस दी थी रॉन्जे वो लीवरे वो cahier, अनमोल इसके बारे में नहीं सोचता. तो I'm going to frame it over here. अनमोल न पॉन्स पा द, यहाँ पे डीई आएगा आगे स्टूडेंट्स. अनमोल डज नॉट थिंक ऑफ द ranger says livre et ses cahiers. तो अनमोल कभी नहीं सोचता उसके बुक्स और नोटबुक्स को अरेंज करने के बारे में. वहां पे लिखा हुआ है अनमोल न पॉन्स पा सला, मतलब इसी के बारे में वो नहीं सोचता और इसलिए उसकी बुक हमेशा रूम में यहाँ वहां पड़ी रहती है. तो ये हमारा थर्ड का स्टूडेंट्स ए है और ए का फर्स्ट था. मूविंग फॉर टू सेकंड वन. Pourquoi est-ce que les parents ont puni Anmol several times? Why parents have punished Anmol several times? Okay, so let's start. Les parents ont puni Anmol several times. So I'm going to write over here. Les parents ont puni Anmol plusieurs fois, several times. Parce que क्यों स्टूडेंट्स क्यों पनिश किया था? बिकॉज आई गेस नो लेस पार डिक्शनरी. ओके. Nous avons puni for the small negligence because his books are always in his room. Okay. So Anmol the parents have punished Anmol several times because काफी सारी रीजन है. Because says livre, because his books are everywhere in his room. Sont partout, are everywhere dans sa chambre, in his room.
हर जगह होती है उसकी बुक्स। और भी स्टूडेंट सेंटेंस दिए, अगर आपको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट फॉर द एंड पुरलपति नेग्लिजेंस, एंड ओसी पुरलपति फॉर द स्मॉल नेग्लिजेंस, नेग्लिजॉन, जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स होता है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती रहती है। मूविंग फॉर थर्ड वन, मदाम मेहता केल कौंसेल डोन एल। सो मैडम मेहता विच एडवाइसेस डज शी गिव? सो आई गेस उसने फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स जो एडवाइस दी थी वही वो फर्स्ट एडवाइस है। वी विल राइट द सेम थिंग अगेन। मदाम मेहता डॉन le conseil de ranger, तो हम सेम यहां पे देखो, यहां पे भी लिखा था ranger, to arrange, Madame Don gives the advices to arrange your books, तो यहां पे ते लिख रहा हूं, tes livres et tes cahiers। सो बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स यहां पे क्या किया है, सेकेंड पर्सन को दिया है, मदाम मेहता गिव्स एडवाइस टू अरेंज योर बुक्स एंड योर नोटबुक्स, तो इसलिए मैंने सेकेंड पर्सन में कमांड दिया हुआ है स्टूडेंट्स। फोर्थ वन Qu'est-ce que le auteur dit à propos de notre vie? So what the author says about our life. So स्टूडेंट्स आप लास्ट टाइम पूरा कॉपी कर लो, हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे। Le author dit, the author says que notre vie est trop मतलब टू होता है, टू court मतलब short, is too short pour perdre ainsi like this notre temps। ओके, सो यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, हमारे पास बहुत कम टाइम है स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में, तो हमें वेस्ट नहीं करना है। मूविंग ऑन टू बी नाउ, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, दिट vrai ou faux, la mère de Anmol s'appelle Madame Mehta, ये राइट है, मदाम मेहता उसकी मम्मी है, वहां पे सन वर्ड दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट ब्रे लिखेंगे। सेकेंड, हिज बुक्स आर एवरीवेयर इन हिज रूम, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, उसकी बुक्स हमेशा यहाँ वहां पड़ी रहती है। il est toujours à l'heure, is always on time for his online lecture, ये तो फॉल्स है, कभी भी टाइम पर नहीं होता है, क्या ऑलवेज। सी पार्ट, लेट्स सी सी पार्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा। ओके, फाइंड इन द टेक्स्ट द ऑपोजिट ऑफ न्यूल पाथ, तो न्यूल पाथ का ऑपोजिट स्टूडेंट्स पार्ट टू आएगा, पार्ट टू मतलब एवरीवेयर होता है, पार्ट टू एवरीवेयर। नेक्स्ट डी में स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, हमें एक गिव अ टाइटल टू दिस पैराग्राफ, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ले कौनसाइल मतलब द एडवाइजेस, ले कौनसाइल। आप कुछ भी लिखो, आपको राइट आंसर मिलेगा, बस इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, आप कुछ भी फुद्दू सा भी लिखो तो भी चलेगा, मैंने सिर्फ पैराग्राफ पढ़ा है द एडवाइजेस। एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट विद अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ई वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ई लास्ट पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। दिस वर्ड इज डिफिकल्ट, सम मोर डिफिकल्ट, cherchez le dans le dash, this word is difficult, search it in the dash, तो हमें हमारे पैराग्राफ से कोई वर्ड देखना है तो यहाँ पे सर्च इट इन द डिक्शनरी आएगा, सर्च इट इन द डिक्शनरी। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स एंटायर क्वेश्चन नंबर 4 ए वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें, और क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट मेल। स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मेल और ब्लॉग, जो मेरा लास्ट टॉपिक रह चुका है और काफी सारे बच्चों ने बोला भी है कमेंट बॉक्स पर, सो ऑफ कोर्स मुझे याद है, ये वीडियो जब कंप्लीट होगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट एम वही होगा कि मैं ब्लॉग के ऊपर काम करूंगा और मेल के ऊपर काम करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो वीडियो भी एकदम शॉर्टली 1-2 दिन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अब देखोगे ट्रांसलेट टू इंग्लिश, उसमें हमें कुछ 3 पेजेस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो मैं फिलहाल वो सॉल्व नहीं कर रहा, बिकॉज पेज नंबर 64 10B वो हमारे चैप्टर 2 में बिलोंग करता है, तो आप चैप्टर 2 वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। पेज 100 हमारे चैप्टर नंबर 4 पर है, तो आप चैप्टर 4 वाला भी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। एंड फाइनली बिलान 2 थर्ड में स्टूडेंट्स जो दिया हमें 110 पर, वो बिलान 2 और आप बिलान 2 वाला वीडियो देखो, उसमें भी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है। सो आई एम नॉट डूइंग दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6B में सॉल्व करने वाला स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6B एंड दैट इज ट्रांसलेट टू फ्रेंच, और हमारे पास कितने सेंटेंस, टोटल 25 सेंटेंसेस है।
तो ये 25 सेंटेंसेस सॉल्व करने के लिए मैं एक बार क्या करूंगा, मैं बोर्ड रब करने वाला हूं. So starting with the last part of this entire question bank, students, question number 6b, that is traduisez en français, translate into French. So students, हम लोग के काफी सारे sentences इंग्लिश में दिए, उसको फ्रेंच में हमने ट्रांसलेट करना है. बहुत ही ज्यादा आसान है, थोड़े बहुत स्टेप्स और रूल्स हम याद रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन भी आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, काफी आसान लगेगा. स्टार्टिंग विद, आई विल जस्ट राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 6b, फर्स्ट वन. चलो हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, which says the children like to play football on Sunday. So students, हमें क्या करना है, the first thing that you, when you see a sentence, आपको identify the tense करना, identify the tense. The children like to play, so it's a present tense. यहाँ पर present tense दिया हुआ है students. So let's start. सबसे पहले the children है तो les enfants. आपका vocabulary बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए इसके लिए students. I keep taking orals of my students in the classroom. उनको डिक्शनरी, जो टेक्स्ट बुक के पीछे डिक्शनरी होती है, उनके ओरल्स वगैरह लेते रहता हूं मैं. उससे क्या होता है, आपके वोकैबुलरीज काफी स्ट्रांग हो जाते हैं. द चिल्ड्रन लाइक, लाइक स्टूडेंट्स, लाइक इज एमेर वर्ब, एमेर प्रेजेंट टेंस है, इसे कॉन्जुगेट करेंगे. लेस enfants एम. लाइक टू प्ले, टू प्ले स्टूडेंट्स jouer वर्ब आएगा, jouer इज टू प्ले होता है, फुल वर्ब आएगा. सो ये वो सब्जेक्ट वन इसके साथ कॉन्जुगेट हो चुका है. सेकंड वर्ब क्या आएगा, हमेशा फुल वर्ब आएगा, टू प्ले. फुटबॉल ऑन संडे, jouer au foot. तो jouer के आगे जब भी स्पोर्ट्स आता है तो एक ग्राफ की फैमिली आती है. फुटबॉल इज अ मैस्कुलिन नाउन, ये मैस्कुलिन इसलिए एयू आएगा, मैस्कुलिन तो एयू आएगा. ऑन संडे le dimanche. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन नाउ. It is necessary to plant trees to save our planet. It is necessary. Again, what is the tense of the sentence, students? It is present tense. Present tense है यहाँ पर, तो it is necessary. तो क्या आएगा, il faut. और हमें एक रूल याद है स्टूडेंट्स, il faut प्लस क्या होता है हमेशा, infinitive. il faut infinitive, तो il faut के आगे कोई ना कोई फुल वर्ब आना चाहिए. planter, to plant, planter. il faut planter trees, des arbres, des arbres. il faut planter des arbres to save our planet. to save, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, pour sauver लिख रहा हूँ, in order to save चलेगा. pour sauver, in order to save our planet. notre, notre मतलब आर होता है, planet, planet, full stop. Moving forward to the third one, Maya goes to school every day at a.m. Okay, so Maya goes, again it's a present tense, so Maya verb आएगा students. goes, goes कौन सा verb है, to go, आलेर verb, आलेर को conjugate करेंगे present tense में. so Maya va, so हमने present tense में conjugate कर दिया. to the school, to the school students यहाँ पे equal आएगा, equal. अब to the लिखना है, vowel से start हो रहा है तो a l apostrophe आएगा, a l apostrophe. तो to the school, Maya goes to the school every day to les jours, every day to les jours, every day at 8 a.m. so a with her due mata, am नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 8 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning, at 8 o'clock in the morning. Fourth one, my father has just gone to the library. What's the tense of the sentence students? मेरे पापा अभी just गए. It's past tense है और एकदम अभी recent past है, अभी just हुआ है. So what's the rule for past है, récent, subject pronoun, conjugation verb venir plus de plus infinitive. So my father, mon père. Père is a masculine noun, इसलिए इधर mon आया, mon. My father has just gone, subject pronoun, conjugation verb venir plus de plus infinitive, have just gone. Gone मतलब to go, आलेर verb आएगा students. ओके, यहाँ पे आलेर आएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डी apostrophe कर देंगे बिकॉज वॉवेल क्लैश हो रहा है. सो mon père vient d'aller, my father has just gone. उसके बाद to the library, to the library students, library is a feminine, bibliothèque, library is a feminine noun. ओके, feminine इसलिए इधर आला आएगा, आला. masculine होता तो au आता, plural होता तो aux आता, similarly feminine इसलिए आला आया यहाँ पर, आला. Fifth one, we are going to finish the homework in 10 minutes. We are going to finish. What is the tense of the sentence? Present tense. Present tense. Sorry, future prosh. Future prosh. We are going to finish. तो news. Subject pronoun. Future prosh का rule क्या है? Subject pronoun. Conjugation verb aller plus infinitive. तो subject pronoun. Conjugation of aller plus infinitive. Nous allons finir le devoir. Nous allons finir le devoir in 10 minutes dans 10 minutes.
Sixth one, moving forward to sixth one. Keep the vegetables inside the fridge. It's a command students, command दिया हुआ है keep. To keep के लिए कौन सा आएगा? Metro, metro. Now command can be given in to, nu and who form. Imperative mode है. To, nu and who form. मैं यहाँ पे to form use कर रहा हूँ. Metro verb है तो METS. Met. Okay. So क्या है? Keep the vegetables. Legume. अब क्या स्टूडेंट्स? In the refrigerator दो आएगा. रेफ्रिजरेटर मैस्कुलिन है इसलिए मैं ल लिख रहा हूं यहाँ पे फ्रीजो, या तो स्टूडेंट्स पूरा रेफ्रिजरेटर भी लिख सकता हूं, रेफ्रिजरेटर. मूविंग फॉरवर्ड टू सेवेंथ वन. द वेदर इज प्लेजेंट इन स्प्रिंग सीजन. द वेदर इज, तो स्टूडेंट जब भी मुझे वेदर को डिस्क्राइब करना हो मैं क्या करता हूं यूजुअली? इल फो यूज, इल फे फेयर वर्ब, इल फे शॉर्ट द वेदर इज हॉट, इल फे फ्रूआर द वेदर इज कोल्ड. सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स द वेदर इज प्लेजेंट बोला है तो मैं यूज करूंगा इल फे आग्रेएबल. आग्रेएबल मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? द वेदर इज प्लेजेंट. मैं वो भी लिख सकता हूँ, द वेदर इज ब्यूटीफुल भी बोल सकता हूँ, बट आग्रेएबल इज अ मोर सुटेबल वर्ड ओवर हियर. सो इल फे आग्रेएबल इन स्प्रिंग. तो इन स्प्रिंग ओ प्रिंटोम. प्रिंटोम मतलब ये क्या हो गया? स्प्रिंग सीजन हो गया स्टूडेंट्स. 8-1. I wrote this letter to my uncle yesterday. I wrote this letter to my uncle मतलब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया. पास्ट टेंस पास्ट से कंपोज से आएगा. ओके, सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब être और avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा स्टूडेंट्स. अब être और avoir डिसाइड करना है मुझे. यहाँ पे I wrote है, टू राइट. एक्रीर वर्ब है, एक्रीर. तो एक्रीर डॉक्टर में सिक्स में नहीं आता है, मतलब ये avoir के साथ आएगा. सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. J'ai écrit मतलब I wrote हो गया स्टूडेंट्स. I wrote this letter l'autre is a feminine noun. ये feminine है इसलिए CETTE आएगा. Cet l'autre, I wrote this letter to my uncle. Mon oncle here मतलब yesterday. Moving forward to ninth one. There are some red pencils in the pouch. There are some मतलब प्लूरल आएगा. दे आएगा स्टूडेंट्स. देयर आर सम रेड पेंसिल्स. इंग्लिश में पहले रेड आया फिर पेंसिल आई, लेकिन फ्रेंच में उल्टा होगा. पहले हम पेंसिल्स लिखेंगे, पहले नाउन आता है इंग्लिश में हमेशा, फिर एडजेक्टिव आएगा रूज. और नाउन क्या है? मैस्कुलिन प्लूरल है स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये भी होगा मैस्कुलिन प्लूरल. इल या देख रहे हो रूज. देयर आर सम रेड पेंसिल्स इन द पाउच. तो दो ला ट्रूस मतलब पाउच हो गया. Moving forward to 10th one now. Neil, wear this leather shoes please. तो नील सबसे पहले नील बोला है, फिर कमांड दिया स्टूडेंट्स. कमांड दिया है wear this red shoes please. ओके, इट कैन बी अ कमांड और रिक्वेस्ट बोल सकते हैं. तो इंपेरेटिव मोड आएगा. इंपेरेटिव मोड मतलब पहले प्रेजेंट टेंस होगा. रिक्वेस्ट और कमांड कैन बी डन इन टू, नु और वू फॉर्म. तो मैं टू यूज कर रहा हूं पे. पॉर्ट wear these leather shoes प्लूरल है तो पहले CS लिखेंगे. पहले नाउन आता है हमेशा, फिर एडजेक्टिव आता है. तो पहले नाउन लिखेंगे शॉज्यूर. तो दिस शूज. अब मैंने बताया था मटेरियल के पहले हमेशा en आता है स्टूडेंट्स. मटेरियल के पहले en आता है. लेदर शूज. ऑक्वीर. अब प्लीज लिखना है. चलो प्लीज बोल सकते हैं. सिल तो प्ले मतलब प्लीज हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टू 11th one now. He never takes butter with bread. He never takes. Present tense है स्टूडेंट्स. प्रेजेंट टेंस. और क्या आएगा? इल और प्रॉन्ड. ये क्या हो गया? हमारा कॉन्जुगेशन हो गया. इल प्रॉन्ड मतलब ही टेक्स हो गया. अब नेगेटिव करना है तो न और नेवर तो जा में आएगा. वर्ब के पहले न और बाद में नेगेशन. तो बाद में हमने यहाँ पे नेगेशन जा में लिखा है. इल न प्रॉन्शा में बटर तो नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे डीई आएगा. bird. All the partitive particles in the negative sentence changes to de. In नप्रंशा में the bird फिर क्या लिखा है? with bread तो avec du with butter. so butter है तो avec du bird. avec with क्या है यहाँ पर? bread दिया हुआ. अच्छा bread दिया हुआ स्टूडेंट्स. bread दिया तो pain आएगा. avec du pain. so in नप्रंशा में the bird avec du pain स्टूडेंट्स. बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया था? यहाँ पे du आएगा बिकॉज pain is a masculine noun. चलो मूविंग फॉरवर्ड टू 12th one. I'm going to write over here 12th one.
My mother is going to buy this dress for me. So students ये क्या है, फ्यूचर क्वेश्चन. My mother is going to buy. My mother, mother से feminine noun, तो यहाँ पे माँ आएगा, माँ, मैं. My mother is going to buy. Subject pronoun, conjugation verb ale plus infinitive. Va Ashite is going to buy. Ma mère va acheter. Ma mère va acheter this dress for me. This dress for me. Dress क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेमिनाइन नाउन है रॉब, तो CETT आएगा. पूर्मुआ, पूर्मुआ मतलब फॉर मी. पूर्मुआ फॉर मी. ओके. Moving forward to 13th one. She received lots of gifts for her birthday. She received lots of gifts. तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? She received lots of gifts. तो ये क्या है, पासे कंपोजे. पासे कंपोजे सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन ऑफ avoir या être प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन आएगा, रिसीव. recevoir वर्ब है, ये डॉक्टर मिसेस वेन ट्रम्प में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन ऑफ avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. receive, reçu. She received lots of, beaucoup de, BEAUCOUP, beaucoup de cadeaux. cadeau में एक्स्ट्रा एक्स आएगा बिकॉज ये प्लूरल है. She received lots of gifts, lots of gifts. फिर क्या था क्वेश्चन में, for her birthday, for her birthday, pour son anniversaire, anniversaire, for her birthday. 14th one. One must not cut trees. To must के लिए कौन सा वर्ब है स्टूडेंट्स, devoir, प्रेजेंट टेंस है. One must not cut, तो ON में DOIT आएगा, नेगेटिव करना है, on a द्वापा. One must not आ गया इसके अंदर, one must not आ गया. To cut on a द्वापा, couper des arbres. One must not cut trees. 15th one. It's a nice number again. Do you like this beautiful scarf? Question mark. Question है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. डू यू लाइक, यू मतलब मैं क्यू फॉर्म यूज करूंगा, तो एमेर वर्ब है, एमेर को कॉन्जुगेट करूंगा, एम ट्यू. डू यू लाइक आ गया इसके अंदर, डू यू लाइक, एम ट्यू, डू यू लाइक. फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डू यू लाइक दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, ब्यूटीफुल स्कार्फ. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले स्कार्फ डिसाइड करना है. स्कार्फ हमारे लिए फेमिनाइन नाउन है, एशार, इट्स अ नाउन. तो ब्यूटीफुल के लिए कौन सा वर्ड आएगा, बेल आएगा, और बेल वो एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले आता है, एक्सेप्शन है. डू यू लाइक दिस, दिस अभी दिस ये फेमिनाइन है, तो दिस के लिए CETTE आएगा, ए शार्प, ए शार्प, क्वेश्चन मार्क. ए शार्प की स्पेलिंग लास्ट में ई आएगी. एम ट्यू सेट बेल ए शार्प, मतलब डू यू लाइक आ गया, फिर दिस ब्यूटीफुल ए शार्प. मूविंग फॉरवर्ड टू 16th one now. The room is bigger than his room. This room is bigger than his room. Comparative degree. This room is a feminine noun. तो feminine तो set आएगा, set chambre. A plus plus adjective plus का plus, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, bigger मतलब grand आएगा, grand extra e because हम room की बात कर रहे हैं और room feminine noun है, तो this room is bigger than का. so plus plus adjective plus का, सारे रूल्स कंप्लीट हो गए कंपैरेटिव डिग्री के. Then his room again room feminine है, तो सा आएगा, और chambre, full stop. 17th one. A vegetarian takes neither meat nor fish. Again स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है. सबसे पहले वेजिटेरियन लिखते थे, वेजिटेरियन इज अ प्रेजेंट मैस्कुलिन नाउन, वेजिटेरियन. वेजिटेरियन टेक्स मतलब प्रेजेंट टेंस में प्रॉन आएगा, प्रॉन. नेगेटिव करना है तो न पहले और बाद में नेगेशन. नाइदर नॉर है स्टूडेंट्स, तो नी आएगा, नी वियॉन, नाइदर मीट और वापस नहीं आएगा, नॉर फिश. फिश के लिए वर्ड है पुआसॉन. तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया था, अ वेजिटेरियन टेक्स. नेगेटिव है तो न पहले डाल दिया, फिर नेगेशन आएगा, नी वियॉन और पुआसॉन, दो चीज आ गई. मूविंग फॉरवर्ड टू 18th one. माय अंकल सोल्ड हिज ओल्ड हाउस लास्ट ईयर. पास्ट से कंपोज है, पास्ट टेंस है, माय अंकल, मॉन ऑन्कल, सोल्ड. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन ऑफ être या avoir. तो सेल मतलब वॉन्ड्र, वो मतलब है वो डॉक्यूमेंट में नहीं आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन ऑफ avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आ vendu. mon oncle a vendu, sold his old house. तो his old house, तो हम हाउस क्या है स्टूडेंट्स, मेजो फेमिनाइन नाउन है, सो सा maison ancienne, sa maison ancienne. just a second. Sa maison ancienne, ANCIENNE. और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर कौन सा वर्ड है,
L'année dernière. L'année feminine noun है dernière. L'année dernière. You can see the spelling. ये भी feminine, इसमें dernière भी feminine आया और ancien word भी feminine आया students because maison is also feminine noun. So noun पहले आएगा फिर adjective, noun पहले आएगा फिर adjective. 19.1. Moving to the next page. Do not eat so fast. It's a command students. Do not eat so fast. Negative है. Do not eat. Eat. मैं command Q form में दे रहा हूँ. Mange. ओके इसको छोटा लिखना पड़ेगा. और नेगेटिव है तो no mange pas so fast. C मतलब so होता है और fast is with. With एक adjective भी है और एक adverb भी है students. 20th one. They went to the supermarket to buy flowers. Now students again इधर पास्ट कंपोज है. Went मतलब पास्ट में पास्ट कंपोज है. They subject pronoun. Conjugation of être और avoir. Went मतलब go होता है. Go का पार्ट go is aller. Aller डॉक्टर मिसेस एंट्रम में आता है तो il सब्जेक्ट प्रोनाउन कंजूगेशन ऑफ être sont aller. अग्रीमेंट्स लगेंगे. They went to the supermarket. They went to the supermarket au supermarché. Supermarché is a masculine noun students. Supermarché masculine इसलिए au आया इधर. They went to the supermarket to buy flowers pour acheter. pour acheter students मैंने यहाँ पे pour लगाया in order to buy. अगर in order to साउंड कर रहा है बहुत तो फिर चलेगा pour लगा सकते हैं. Ils sont allés au supermarché pour acheter in order to buy flowers. Flowers plural है students तो DES आएगा और fleur आएगा fleur. 21. The students returned late from the museum. Again passé composé the students plural les étudiants. Subject pronoun return retourner डॉक्टर के सेंटर में आता है तो subject pronoun conjugation of être plus past participle retourner. और retourner में मैंने क्या डाला स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा s डाला बिकॉज यहाँ पे प्लूरल है इसलिए एक्स्ट्रा s डाला है मैंने. retourner les étudiants sont retournés sont returned late from the late आएगा तो late के लिए तार वर्ब है. तार from the museum. म्यूजे से masculine noun म्यूजे इसलिए du आएगा. du मतलब from the हो गया. from the museum. 22 now. After that Ira is the most intelligent student in the class. Ira is the most intelligent student. superlative डिग्री है तो Ira तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. Ira is the student et l'étudiant एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज लड़की है. Ira et l'étudiant the most intelligent. अब मुझे रूल अप्लाई करना है सुपरलेटिव का. सब्जेक्ट प्रोनाउन सॉरी क्या आएगा सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू. मोस्ट है ना प्लू आएगा प्लस एडजेक्टिव. सो क्या एडजेक्टिव था इंटेलिजेंट था ना. इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज यहाँ पर वो लड़की है. सो Ira et l'étudiant la plus intelligent most intelligent in the class plus partitive article definite article plus blue plus adjective plus partitive article और the ला आएगा because class is a feminine noun. class is a feminine noun इसलिए मैंने यहाँ पे the ला लिखा. 23. let us not use plastic bags. कमांड दिया हुआ स्टूडेंट्स नेगेटिव में है. कमांड कैन गिवन टू nouveau form. इधर us है. us मतलब नु है. ओके तो न utilisons pas. न utilisons pas. let us not use न utilisons pas. ओके des sacs en plastique. मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स पहले नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा और मटेरियल के पहले हमेशा en आता है. प्लास्टिक. ओके सो न utilisons pas des sacs en plastique. do not use plastic bags when we go to the market. when और अभी आगे प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है. प्रेजेंट टेंस we go to the market तो nous allons. मार्केट इज अ मैस्कुलिन नाउन इसमें au आएगा. marché au marché when we go to the market. 24th wait patiently the doctor is going to arrive soon. wait के लिए कौन सा वर्ड है attendre. कमांड दिया हुआ है. कमांड में तू वो फॉर्म मैं तू फॉर्म यूज कर रहा हूं. attendre आदि एंडिंग वर्ब स्टूडेंट्स ये attendre. wait patiently is an adverb तो patiment. wait patiently the doctor is going to arrive soon तो the doctor le médecin ओके
is going to arrive soon. Future process students is going to arrive. So subject pronoun noun, conjugate verb alle plus infinitive. Va arrive soon. Soon के लिए वर्ड है bientôt, bientôt, bientôt. The médecin va arriver bientôt. And going to the last one over here. 25th, at the end of the meal, the French people take coffee. À la fin, at the end of the meal, à la fin du repas, at the end of the meal, à la fin du repas, the French people take coffee. Les Français take, present tense है prennent. So at the end of the meal, the French will take coffee. Coffee is a masculine noun, तो du आएगा du, और फिर मैं आप लिख रहा हूँ काफे, काफे, du काफे. और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने पूरा कंप्लीट कर दिया हमारा 24th और 25th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा स्टूडेंट्स अच्छे से. एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से समझ गया होगा. क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है. व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा क्वेश्चन बैंक का राइट आंसर लिखा हुआ होगा, बट इट विल टेक मी सम टाइम टू कंप्लीट दैट पार्ट. सेकेंडली स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, दैट विल बी ऑन ब्लॉग्स एंड ईमेल राइटिंग. सो थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह जो होती है, कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें करनी होती है उसके अंदर, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ. सो टिल देन, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग. फिर भी आपको नहीं समझा हो स्टूडेंट्स, तो हमने जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. You can keep asking us doubt in that WhatsApp group related to accounts and French. Okay? अगर आपको अभी भी अपने WhatsApp group में ऐड नहीं किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है. You can be a part of that WhatsApp group and be with us till the end of our board exam. Thank you so much. It was nice having all of you. Bye.